Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address any company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. I am Gaura Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर 23314444, दूसरा नंबर है 23717106 और तीसरा नंबर 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं बाजार विश्लेषक सुशील सिन्हा। सुशील जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल। Thank you, Vibhuti, and welcome, Shishi, to the program. A quick look at the headlines. Domestic stock indices ended flat amid mixed cues from global share markets. Sensex finishes below 62,850. Nifty settles above 18,700 level. Gold climbs above 54,000 rupees per 10 gram for February contracts at the MCX. And Brent crude prices rise around 3% to trade at $87.90 per barrel. वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू बाजार लगभग सपाट हुए बंद। फरवरी अनुबंधों के लिए सोना तेजी के साथ 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर और ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 3% बढ़े $87.90 प्रति बैरल के साथ कर रहे थे कारोबार। Before we begin, a look at the detailed stocks. The Sensex and the Nifty today closed almost flat. Both indices ended divergently amid mixed cues from global share markets. The BSE Sensex finished below the 62,850 points, while the Nifty settled above the 18,700 level. The Sensex fell 34 points to close at 62,835, while the Nifty added 5 points to end at 18,701. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.1% and the small-cap index ended 0.25% up. In the Sensex-backed 15 companies posted gains, while 15 logged losses. Tata Steel was the top gainer as it surged 3.4%, followed by NTPC, which added 1.7%. SBI Bank moved up 1.6%, and IndusInd Bank entered 1.4% up. On the other hand, Reliance declined 1.5%, Tech Mahindra fell 1.3%, Dr. Reddy slipped 0.7%, and Axis Bank ended 0.6% down. In sectoral indices at the BSE, 12 sectors gained while 8 logged losses. The metal sector gained 2.4%, the commodities index rose 0.9%, realty sector added 0.7%, and Bankex ended 0.5% up. On the other side, the healthcare sector declined about 0.5%. The IT sector slipped 0.4%, and auto and tech both slipped 0.3% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,043 companies gained while 1,567 fell. Shares of 184 companies remained unchanged.
घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग सपाट बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच दोनों सूचकांक लगभग बिना अधिक बदलाव के बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 62,850 अंक के नीचे, जबकि निफ्टी 18,700 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 62,835 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 दर्ज किया गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.1%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। Right. And Shishir, we have our first caller on the program, Ravi from Sonipat. Please अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरा ये प्रश्न है सर, ये जो मोटे अनाज को का सर कृषि पर कोई का सर भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव? रवि जी, आप अपना सवाल रिपीट कर लीजिए एक बारी। हेलो। हाँ, एक बारी सवाल फिर से पूछ लीजिए। जी सर, ये जो मोटे को Right. I think we will try and reconnect with Ravi. Coming back now, we are seeing, the monetary policy, the RBI's monetary MPC committee is now meeting. The meeting is slated actually from the 5th to the 7th, Shishir. What do you think is going to be their stance? So going by the current retail inflation based on consumer price index, which is still above the 6% level, and this is 9 months in row we have seen when the inflation rate, retail inflation rate is about 6%. And even if we get the figure for the month of November on 12th of December, again it is likely to be over 6%. So Okay. This means the RBI Monetary Policy Committee will go for another rate hike. That is the probability which we are seeing. That's the expectation. And the good news is that the rate hike will not be that much which we have seen during last 4 or 5 occasions. It may be slightly lesser than the previous occasions. The another good thing is that we will see some kind of commentary on what kind of future rate hike would be. If you can remember, Federal Reserve has given the commentary, and that commentary has almost created some kind of impact on overall global market. Right. Now there is no fear that there will be unexpected rate hike. So what we are expecting from RBI that they will give some commentary on the future rate hike, and since we are expecting that the retail inflation based on consumer price index is likely to over 6% for some more time, so we may see another rate hike, but that rate hike after the month of December, when the MPC will meet again in the month of February, that may not be as high what we have seen during a previous occasion, and also it will be lesser than what we will see in the month of December. Right. That means somewhere managing inflation is important. It's critical. It's a primary focus also. If you go by the RBI preamble, it has the basic work to do is the control the inflation, to check the inflation. And there are various instruments available to check the inflation, and one is of course the most important is the policy repo rate. And we have seen almost 190 basis point hike in the policy repo rate. Now it is 5.9%. So if you take the growth factor, growth phenomena, one can argue that for the growth thing we need lower interest rate, but at the same time we also have to think about the inflation rate, because the inflation is also called as the poor's man tax. So somebody who is having a less income have to pay more, so we have to provide relief to them also. Right. जी, थोड़ा सा शेयर बाजार की वहां से होते हैं वापस। ये जो घरेलू शेयर बाजार है आज सपाट बंद हुए, जबकि पिछले दिनों ये अच्छा काम कर रहे थे, इस पे क्या कहना है? देखिए, अब शेयर बाजार को इंतजार है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो किस तरीके की कमेंट्री देती है। देखिए, एक बात तो साफ है कि ब्याज दरें बढ़नी है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन अब हमारी ज्यादा नजर इस बात पे है कि आगे की रूपरेखा क्या होगी, और शेयर बाजार अब उसी चीज का इंतजार कर रहा है। एक दूसरा, अगर वैश्विक कारणों को देखें तो वैश्विक कारणों में अभी स्थिति जो नजर आ रही है, चाहे आप जर्मनी का इंडेक्स को देखें, चाहे फ्रांस का इंडेक्स को देखें, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव थे या फ्लैट पे बंद हुए थे। तो वैश्विक संकेत अभी भी ऐसे नहीं है जो आपको या तो शेयर बाजार को नीचे ला रहे हो या शेयर बाजार को ऊपर उठा रहे हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपने सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखी और निफ्टी में सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़त आपने देखी है। Do you think somewhere this expected, rate hike by the
RBI is already been factored in the last 2 days? Certainly, because most of the experts, most of the bankers, most of the economists, they will say that there will be rate hike. The only issue is how much. So we have seen 50 basis point rate hike. Now we may see only 35 basis point hike. Okay. And they have already factored in when they are going into market. So that is not going to be a surprise. The surprising element will be the commentary. And what kind of commentary RBI governor will give after the MPC meeting, that is the most important, and that will direct the next 1 week or 2 week of market movement. Right. इस बीच एक सवाल ले लेते हैं। गाजियाबाद से गौरव हैं। गौरव जी, सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर, मेरा सवाल ये जो पश्चिमी देशों ने एक टोपी लगाई है डीजल और क्रूड कच्चे तेल के ऊपर टोपी लगाई है, या क्या प्राइस क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी वैधानिकता और हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या है? क्या हम $60 से कम में हमें तेल मिलेगा जो डिस्काउंट हमें देता था रूस, या रूस उसको मानेगा नहीं और वो उसकी हमारी बात मानेगा? और हमारे इस पे मार्केट पे इसका क्या असर होगा? क्या हमें सस्ता मिलेगा? क्योंकि अभी भी हम 160, 108 पे खरीद रहे हैं कई राज्यों में, वो कभी कम ही नहीं हुआ है, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या इसका कुछ असर हमारे को रिटेलर को मिलेगा, रिटेल कंज्यूमर को भारत में, और मार्केट पे इसका क्या असर होगा? गौरव जी का सवाल जो है कि यूरोप में जो कैपिंग लगाई गई है रशिया से क्रूड के लिए, उसका इम्पैक्ट भारत के लिए क्या है? देखिए, रूस के लिए हमारे दो कस्टमर हैं, एक यूरोप है और एक भारत है। भारत को अभी तक जो उसने डिस्काउंट दिया इसलिए दिया क्योंकि भारत ने कभी भी उनसे तेल खरीदने से मना नहीं किया या किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई, और वो डिस्काउंट भी इस बात पर था कि ओपेक के जो प्राइसेस हैं उस प्राइस पे जो सप्लाई दी जा रही है उसमें वो किस हद तक दे सकता है। हम रूस के प्रायोरिटी में कस्टमर तो बने रहेंगे, लेकिन ये सोचना कि हमें $60 प्रति बैरल पे मिल जाए या $65 प्रति बैरल पे मिल जाए, शायद मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी। अभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमें बहुत सस्ते में तेल मिलेगा उनसे। सस्ते में तेल मिलेगा, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं होगा कि जो सस्ता आप $60 या $65 प्रति बैरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल आपको देखना है। दूसरा, जहां तक सवाल है कि क्या भारतीय बाजारों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, देखिए, भारतीय बास्केट के प्राइसेस कम हुए हैं। आज कभी एक दौर में 95 पर था, अभी 80-81 पे है। उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये 75 के नीचे आए तब जाकर के शायद हम थोड़ी उम्मीद करेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी आए। एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हर रोज की कीमतों के आधार पर कच्चा तेल नहीं खरीदा जाता, उसका जो एक तरीके से आप कहिए लॉन्ग टर्म होता है कि आप 3 महीने 6 महीने के आधार पर आप खरीदते हैं, तो आपको उन समय की कीमत का देखना है जो आज जो कच्चा तेल जिसके आधार पर पेट्रोल और डीजल आपके गाड़ियों में पहुंच रहा है। एक सवाल मेरा ये इसमें, पेट्रोलियम पदार्थों में जो कीमतें हैं पेट्रोल की कम हुई हैं, लेकिन सीएनजी में कम नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या वजह है इसकी? देखिए, नेचुरल गैस और क्रूड दो अलग अलग चीजें हैं, आपको ये दोनों में ध्यान में रखना है। और उसके भी प्राइसेस इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। और एक चीज और मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल की जो घरेलू बाजार में कीमत होती है वो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस पे होता है, वो केवल कच्चे तेल के प्राइस पे नहीं होता है। तो हम सीधे सीधे उसको जोड़ देते हैं कि कच्चा तेल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। आपको ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। वही सवाल आपका गैस से भी जुड़ा हुआ है। We have now got Ravi back on the line. Ravi from Sonipet. Ravi, अपना सवाल पूछिए। I think we'll move on to our next caller. We seem to have lost that call. Before we move on to that, wanting to understand from you that, you know, we spoke about oil prices now. We know that the global situation is, you know, it's uncertain and somewhere certain for some time because it's become so long, the war, the drawn out, the stances that people are taking. So do you feel that somewhere, you know, what are some new cues that the Indian stock market will now respond to actually move in any particular direction? What are investors waiting for? The two cues. One is, of course, what kind of economic growth we will see in China. Because the Chinese economy performance has been under big, what you can say, scanner, that what kind of growth rate we are seeing that. So economy in China, how it performed, that is one cue. The second cue will be that what kind of inflation we will see in United States
And if the fear of recession in European Union and UK, if that is something which we have to consider for any kind of direction for the Indian stock market. So there are two factors. One is the inflation and along with the recession in US, UK and Europe. And the second one is the economic performance of China. These two are the critical for the movement of the stock market in India. Right. We welcome Anil from Gurugram. Anil, please ask your question. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. My question is related to digital currency which RBI has recently launched. Actually, मेरा तो जो सैलरी आता है for the years, I have been seeing those numbers in my salary slip and transferring that money through UPI, through NEFT, IMPS, Paytm, and I am not using hard currency. So how this digital currency is different from my UPI transfer and Paytm or NEFT, because there also I am using digital media to transfer the money from my account to someone else. Thank you. बहुत अच्छा सवाल है और इसको लेके बहुत सारे भ्रम भी हैं। देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आपने यूपीआई का जिक्र किया या आपने अलग अलग एप्स की बात की, वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म हैं। और हम जिस सीबीडीसी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो एक करेंसी है। ये एक ऑप्शन है फिजिकल करेंसी के ऊपर। जैसे आपके पास कागज के नोट हैं या धातु के सिक्के हैं, उसी तरीके से ये एक डिजिटल करेंसी है। और सीबीडीसी डब्ल्यू जो कि होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए 1 नवंबर से उसका पायलट शुरू हुआ, और जो सीबीडीसी आर जो कि रिटेल है, जिसको हम लोग टोकन बेस्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, वो 1 दिसंबर से उसका पायलट शुरू हुआ है। शुरुआती लेवल पर थोड़े से मन में लोगों के सवाल हैं कि पता नहीं ये क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा। तो एक अंतर आपको समझना चाहिए, आप जब यूपीआई की बात करते हैं, एनईएफटी की बात करते हैं, आरटीजीएस की बात करते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म या सॉल्यूशंस हैं। और जब आप सीबीडीसी की बात करते हैं, वो बेसिकली एक करेंसी है, जैसे आपका फिजिकल करेंसी होता है। दूसरा, यहां पर जो आप ट्रांसफर करते हैं भीम यूपीआई के जरिए, वो आप फिजिकल करेंसी ही ट्रांसफर करते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरा, जब सीबीडीसी आर या सीबीडीसी डब्ल्यू की बात करते हैं, उसमें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करेंसी आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये अंतर आपको समझना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आगे चल करके आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। आप चाहे तो फिजिकल करेंसी में आप करिए, आप चाहे तो डिजिटल में करिए। अगर डिजिटल में करेंगे तो वो टोकन बेस्ड सिस्टम होगा। जब आप फिजिकल में करेंगे तो आपके वो बैंक अकाउंट से या आपके वॉलेट से वो पैसा किसी दूसरे के वॉलेट या किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये दिल्ली से कॉलर हैं आस मोहम्मद जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ये जानना था, मैं अभी फिलहाल इन्वेस्टिंग करता हूँ लॉन्ग टर्म पर्पज से, लेकिन एक मेरे फ्रेंड है, वो कहते हैं कि एफएनओ में पैसा लगाओ फ्यूचर ऑप्शंस में, वहाँ पे पैसा डबल हो जाता है 2 दिन में 3 दिन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या है और ये कितना रिस्की है, और अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मुझे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जिसमें मैं एफएनओ में जा सकूँ। आज मोहम्मद जी, एक चीज आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से खुदरा निवेशकों को, छोटे निवेशकों को दूर रहना चाहिए। रहा सवाल कि आप बिजनेस के, एक इन्वेस्टर के, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वहां पे आप जा रहे हैं तो एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। तीसरी बात, 2 दिन में या 3 दिन में या 5 दिन में पैसा डबल होने की जो बात होती है, इस तरह की सुनी सुनाई निवेश सलाह से बचें, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकते हैं। देखिए, मार्केट को समझना इतना आसान होता तो आज देश में बहुत सारे करोड़पति होते, वो है नहीं। और करोड़पति तो छोड़िए, लाखपति और हजारपति भी नहीं रह पाते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप एक छोटे निवेशक हैं तो आपके लिए चाहे स्पॉट मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट का, और दूसरा ये है कि अगर आप सीधे सीधे शेयर बाजार का जोखिम नहीं उठाना चाहते तो म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाइए। बॉन्ड का आपके पास निवेश है, और ये कभी भी इस झांसे में ना आइए कि 2 दिन में या 3 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। Shishir, I think that's a very valid point because, somewhere profits तो really they shine और रिस्क जो है वो छुपे होते हैं। तो मतलब शाइन दिखती है, रिस्क बाद में पता लगता है। आई थिंक that's yeah, and see, other thing is that you need to understand what is your risk appetite. Right. Everybody cannot take much of the risk. So please, before investing in any kind of instrument, whether it is a debt instrument or equity instrument or hybrid instrument or mixed instrument, please assess your risk. Yeah, सबको एक साइज फिट नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। We are different people, absolutely. We welcome our regular listener from Thane, Mr. Gurunath. Please ask your question, sir.
हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। एक्सपर्ट सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी ये जो लॉन्च किए थे हमारे गवर्नमेंट ने, ये जो डिजिटल करेंसी, और पहले से तो हम मतलब हमारे देश में डिजिटल जो हो जाता अपने ये जो ट्रांजैक्शन किया जाता था ऑनलाइन, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? मतलब इसमें क्या प्राइवेसी का क्या है? मतलब हम डिजिटल का ये जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा पासवर्ड सामने वालों का, मतलब जो लेन देन करते समय पासवर्ड शो हो जाता है। और मेरा तो दूसरा सवाल है, ये जो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है उसके बाद में हमारे इकोनॉमी में जो करेंसी है कितनी सर्कुलेट हुई है? थोड़ा आंकड़ा हो तो आपके पास बताइए। देखिए, पहला सवाल चूंकि अभी अभी हमने उसका जिक्र भी किया है, लेकिन मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि आप यहां पर जिस सीबीडीसी आर की बात कर रहे हैं या सीबीडीसी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या जिसको आप ई रूपी भी कहते हैं, उसकी घोषणा बजट में की गई थी और उसके बाद 1 नवंबर से सीबीडीसी डब्ल्यू जो कि अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है और सीबीडीसी आर जो कि टोकन बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है, इसकी शुरुआत हो रही है। अब आपको लगेगा कि मैंने अकाउंट बेस्ड और टोकन बेस्ड थोड़ा सा टेक्निकल बोला, इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अकाउंट बेस्ड में है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और वो लार्ज यानी कि बड़े लेन देन के लिए है, और दूसरा यह है कि सीबीडीसी आर में एक टोकन के जरिए आप कहीं भुगतान कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर हम लोग जिस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, उसमें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फिजिकल करेंसी का ट्रांजैक्शन करते हैं। जब आप सीबीडीसी डब्ल्यू या सीबीडीसी आर की बात करते हैं तो उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये अंतर आपको समझना है। एक और बात यहां पे मैं कह दूं कि कागज के नोट छापने या धातु के सिक्के गढ़ने में एक पैसा खर्च होता है। जब सीबीडीसी आर की बात होगी या सीबीडीसी डब्ल्यू की बात होगी, उससे उसका खर्च कम हो जाएगा। एक आखिरी बात, ये आपके लिए एक विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। आप चाहे तो कागज के नोट या धातु के सिक्के से आप लेन देन कर सकते हैं, ये आपके लिए एक विकल्प है। Right. I think Shishir, in a nutshell, if we say one is a digital transfer and one is a digital currency. Yes. Right? And currency is the word, please remember, currency which is backed by sovereign. It is a fiat currency which has all the features which a paper currency or the metal coin has. And the plus point is that the RBI in India is backing it. RBI, and because the RBI is the sole authority in India to issue the currency, so CBDC-R or CBDC-W will only be issued by the central bank. Right. Right. I think perseverance pays off. We have Ravi from Sonipat on the line. Ravi, sawal पूछिए please. Okay. I think before we get Ravi back on the line again, we'd like to... बीच में हम कुछ एशियाई बाजार की कुछ खबरें जान लेते हैं। तो सबसे पहले वैश्विक बाजारों में एशियाई शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। वैश्विक शेयर सूचकांकों ने आज चीन में के घरेलू महामारी प्रतिबंधों में ढील और शुक्रवार को अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों से प्राप्त संकेतों से मुद्रास्फीति ऊंची रहने की आशंका के साथ कारोबार वहां मिश्रित रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी को छोड़कर एशियाई इक्विटी मार्केट में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 4.5% की बढ़त दर्ज हुई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 1.8% चढ़ा पर रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.3% और जापान का निक्केई 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। और अब यूरोपीय शेयर बाजार की बात करें तो यहां का अंतर्दिवसीय कारोबार का रुख मिला जुला रहा। समाचार लिखे जाने तक लंदन के फुटसी में 0.3% की बढ़त, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.5% और फ्रांस का कैक 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। A quick look at the oil prices. Global crude oil prices today rose around 3%. Oil rose after OPEC plus nations held their output targets steady ahead of a European Union ban and a price cap by G7 on Russian crude. Brent crude was trading at $87.90 per barrel, while WTI crude prices were at $82.40 per barrel. Shishir, we'd like to welcome on our show from Kolkata, Ratna Mitra. Please ask your question. नमस्कार सर, मैं रतन मित्र बोल रहा हूँ कोलकाता से। सर मेरा एक प्रश्न है, ये मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा पास 300 शेयर है, जो कंपनी ने पर शेयर 15 रुपीज करके डिविडेंड दिया, तो हमारा तो होना चाहिए था सर 4,500 रुपया, पर हम ये बैंक खाता में देख रहा हूँ
4,185, मतलब 7% कम। ये क्यों हुआ सर, थोड़ा बता दीजिए। मैं अगर आपके सवाल का जवाब लूं, उसके पहले जो एक थाने के जो कॉलर थे, उन्होंने एक सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, उन्होंने पूछा था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद नोट करेंसी इन सर्कुलेशन कितना बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर 17.7 लाख करोड़ के लगभग था, जो अब 31 लाख करोड़ रुपए के लगभग में है। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, आपके यहां नोट भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो इस सर्कुलेशन को हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए। अभी जो सवाल पूछा गया है कि उनको जो डिविडेंड मिला और जो जितने डिविडेंड की घोषणा की गई और उनके खाते में पैसे कम आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका टीडीएस काटा गया है और उसकी वजह से आपके खाते में कम पैसे आए हैं। लेकिन अभी भी आपकी टैक्स की देनदारी खत्म नहीं हुई है। आपकी कुल इनकम में जोड़ जाएगा तो एवरी रूपी जो आपके खाते में आए हैं वो आपके टोटल इनकम का हिस्सा होगा और उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। जी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने में आज 225 रुपए की उछाल देखी गई और ये 54,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। समाचार लिखे जाने तक मार्च अनुबंधों के लिए चांदी में भी आज 380 रुपए की चमक देखी गई और यह प्रति किलोग्राम 66,830 रुपये पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना 1,807 अमेरिकी डॉलर और 90 सेंट प्रति औंस मंदी के साथ, जबकि चांदी $23 और 20 सेंट प्रति औंस मंदी के साथ कारोबार कर रही थी। Shishir, do you feel that, generationally, gold has been a solid investment, and especially in India, we've really looked at it as, like the RBI is the lender of the last resort. Gold is, a householder's last possession which they might sell in terms of adversity. Now, do you think with more options available, with the changing generational mindsets, gold is likely to lose its luster, or no, it will continue to be strong? Gold will never lose its shine. Let me tell you, because it has a lot of emotional issue. We buy gold not just because of the investment. Many of the people buy because of the emotional consideration. Well said. During the marriage, you have to buy the gold. Even after death, I'm sorry to use this word, but even after death, people buy gold to give it to the पंडित जी as a, what you can say, as a तेरहवीं में जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें दान देना है. So I don't think the people will buy less gold. The only thing is that now there are more and more options available. One is the paper gold. Then you have the exchange traded fund. Then the gold traded fund is also available. Then gold ETF is available. Sovereign gold bond, what we call as the paper gold, this is available. And of course the physical gold. My simple advice would be that if you are making investment, don't buy jewelry, buy gold biscuit or go for the sovereign gold bond. Right. So look at gold as an investment and emotional into... Exactly. Okay, thank you. We welcome from Faridabad, Narendra Chabra ji. Narendra ji, could you quickly ask your question, please? सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर यूनिट और पीएसयू और सीपीएसयू में क्या फर्क है? देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो राज्य का भी हो सकता है और जो सीपीएसयू है वो आपके केंद्र सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिनका मालिकाना हक सरकार केंद्र सरकार के पास है वो सीपीएसयू में आते हैं। राइट, एंड आई थिंक we'd actually really like to thank you so much, Shishir ji, for joining us on the show. धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। Thank you. It was wonderful, got some wonderful knowledge. And I think questions, whether it's the digital currency or not, concern all of us. And it's a new thing, and the more we move in, the more information we are likely to get and educate ourselves. Exactly. I think that's the very, very critical. Well, now before we close, a quick reminder of the headlines. Domestic stocks ended flat amid mixed cues from global share markets. Talking of the indices, the Sensex finished below 62,850. The Nifty settled above the 18,700 level. Gold climbs above 54,000 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX. And Brent crude prices rise around 3% to trade at $87.90 per barrel. And thank you, listeners, for tuning in. That's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.